Amen. Amen. God is good. All the time. Yes, we should be happy that you are in the house of तो God. आपको आनंदित होना चाहिए कि आप प्रभु के घर में You हैं। should not happy that oh that person is not there. आप इसलिए खुश ना हो कि सामने वाला नहीं आया। All these people are empty. No, we should happy that we are in the house of God. तो हम इसलिए खुश रहना चाहिए कि हम प्रभु के घर में हैं। You are so privileged to be in the house of तो ये God. बहुत बड़ा आशीष है कि हम परमेश्वर के घर में हैं। Many people they want to be here, बहुत से लोग यहाँ होना चाह रहे थे, but they have failed to be here. पर वह नहीं पहुँच पाए। So you are great people. तो इसलिए आप महान लोग हैं। Bible says the blessed are those that who are saying let us go to the house of बाइबल God. कहती है आशीषित वो लोग हैं जो कहते हैं कि चलो प्रभु के घर में चले। But we are said the people who are not able to be here. पर हम उन लोगों पर ध्यान लगाते हैं जो प्रभु के घर में नहीं आते So that they are failed to receive the blessing of और God. इसलिए प्रभु की आशीष पा नहीं पाते। So Friday and today, Friday I talk about what is love. तो पास्टर ने शुक्रवार को बात करी प्रेम के बारे में। And today I want to talk about true love. आज पास्टर सच्चे प्रेम के बारे में बात कर। So Friday I talk about what is love. तो शुक्रवार को बताया कि प्रेम क्या है। So love is completely different from the way we think. तो प्रेम जो हम सोचते हैं उससे बहुत अलग है। So I also talk about that there is a three type of love, तो पास्टर ने बात करी कि four type of love. चार तरीके का प्रेम होता है। What are there? कौन कौन तरह का प्रेम होता है? Agape, store, familio, envoy. Agape, store, phileo, and ero. So they are the agape is the God's love, तो अगापे मतलब परमेश्वर का प्रेम and then also throat is the parents' love. और थ्रोट जो है वो परमेश्वर Store is the parents' love. स्टोर जो है वो परमेश्वर Phileo is phileo is the brothers and sisters जो love. फिलो है वो परमेश्वर वो भाई बहनों का प्रेम Or ero talk about the romantic love. और जो एरोस है वो पति पत्नी के प्रेम के बारे So में। today and then also the Bible say the greater things in this world. तो बाइबल ऐसा बताती है कि दुनिया में सबसे महान चीज Love प्रेम है, is the greatest thing. सबसे महान है। And then also Bible we have already studied in the 1 Corinthians chapter 13. तो पहले कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में हमने पढ़ा, I will repeat again. पास्टर दोबारा बताएंगे। 1 Corinthians chapter 13. पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय। You are having a gift. क्या हो सकता है आपके पास वरदान हो? You have a gift of prophet. भविष्यवाणी You have का, a gift of healing. चंगाई You का, have a gift of dream. सपना देखने You have a का, gift of vision. विजन देखने You का, have a gift of performing miracle signs and अलग wonders. चमत्कार करने का, You have a gift of evangelist missionary. या इवेंजलिस्ट या मिशनरी होने You का, have a gift of pastor. या एक पासवान बनने You का, have a gift of faith also. या आपका विश्वास का, Or you have a gift of hospitality. या लोगों के मेहमान नवाजी का आपके पास बता Helping people. लोगों की मदद Giving करने का, people. देने का, Or even your body alone. चाहे आपका शरीर भी जल जाए। When you read in the 1 Corinthians chapter 1 to 7. जब आप पहला कुरिन्थियों 1 से 7 तक पढ़ते हैं, 13 1 to 7. 13 का 1 से 7 All the talk about. सारी चीजें Even though you born your body also. अगर हम अपने अंदर शरीर भी प्रभु के लिए दे दिया, For जला दिया, somebody. किसी के लिए, But if there is no love, लेकिन अगर प्रेम नहीं है all things become nothing. तो हर चीज बेकार है। So that means love is very very important. इसलिए प्रेम बहुत बहुत जरूरी है। So Bible says you might be having prophecy. तो बाइबल कहती है हो सकता है आप भविष्यवाणी करते You हो, might be having so many miracles, signs and wonders. अलग चमत्कार वरदान आपके पास हो, Or you might be having a vision. या विजन देखते हो, Or you might be having even the Bible says here in that 1 Corinthians chapter 13, you might be speaking the heavenly हो language. सकता है आप स्वर्गीय भाषाएं भी बोलते हो, You're speaking the angel language. या आप स्वर्गदूतों की भाषाएं बोल लेते हो, So many things that you have done. कितनी चीजें आप कर लेते हो, But लेकिन when you didn't have love, अगर इन सब के बावजूद प्रेम नहीं है, all these things तो ये सब चीजें क्या है? become what? व्यर्थ है, क्या है? बेकार है। All these things become nothing. तो ये सब चीजें व्यर्थ है। So now, today I want to talk about the true love. तो आज पास्टर बात कर रहे थे सच्चे प्रेम के बारे में। So that means love is very, very important. तो प्रेम बहुत बहुत जरूरी है। God is love. परमेश्वर प्रेम है। But to have true love, what we need to do? सच्चा प्रेम होने के लिए क्या करना है? You can't do by yourself love. आप अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। That is why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा the disciples were asking, कि चेलों ने जब पूछा, before Jesus go, यीशु गए उससे पहले, Jesus last thing he said two things. यीशु ने जाते हुए दो चीजें कही। 10 commandments. 10 आज्ञाएं। Among the 10 commandments, 10 आज्ञाओं में what is the greatest commandment? 10 आज्ञाओं में सबसे महान आज्ञा क्या है? God
before Jesus was alive on this earth. यीशु मसीह जब इस धरती पे Let जिंदा us थे, come to the first Matthew. खोलते हैं मत्ती का Matthew सुसमाचार, chapter 22. मत्ती 22, Matthew chapter 22. पेज नंबर 36, पेज नंबर 36, मत्ती का सुसमाचार 22वां अध्याय। Yes, Matthew chapter 22. Let us read together. Oh, we read together, okay? Verse 37 and then verse 14. Up to 14. Chapter 22, verse 37 to 14. हम पढ़ेंगे 22 का 37 से 40 तक। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। Amen. So the first greatest law, तो सबसे बड़ा एक जो आज्ञा है, the greatest commandment, सबसे बड़ी आज्ञा, that Jesus said, तो यीशु ने कही, love the Lord कि अपने परमेश्वर से प्रेम करो, with all your heart, with पूरे all दिल, your mind, पूरे with all मन, your पूरे soul. सामर्थ्य से। Today, आज we say we love God, हम कहते हैं प्रभु से प्रेम करते हैं, but really you checking your heart. पर हम अपने दिलों में आज देखते Are you हैं, really love God? क्या आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? If we love God, अगर हम प्रेम करते we होंगे, will obey His तो word. हम सारी आज्ञा मानते हैं। If we love God, अगर हम परमेश्वर से we प्रेम will करते हैं, put into हम action. अपने जीवन में उन आज्ञा को उतारते So हैं। if we love God, अगर हम प्रेम we करते will हैं, see so many things. हम बहुत चीजें देखते हैं। So Bible says love God means सुम्मा करके प्रभु ऐसा नहीं. So love is the action. तो जो प्रेम है वो एक काम में आपको दिखाना होगा। Or love is a commitment. प्रेम जो है एक तरह का कमिटमेंट है। Without commitment, जब तक आपके कमिटमेंट नहीं है, you can't able to love. आप प्रेम नहीं कर See, सकते। when the husband and wife, जब एक पति और एक पत्नी they love, वो प्रेम करते they हैं, marriage, शादी होती there है, is a commitment. तो एक समर्पण होता है। They commit that they will be staying together forever until they die. वो वाचा बांधते हैं कि जब तक हम मर नहीं जाते हम साथ में रहेंगे। So in that journey, और उस सफर there में is so many things happen. बहुत चीजें होती है, Fighting, लड़ाई भी होती है, anger, गुस्सा भी आता all है, kinds of problems. बहुत सारी परेशानियां भी Financial आती है, problem. पैसों की प्रॉब्लम भी, And so different husband mind are different, women's are different. पति का दिमाग अलग होता है, पत्नी का दिमाग कई बार अलग होता है। So we are human beings. There is so many desire different, so many things are different. तो हम इंसान हैं और हम सब इंसानों में बहुत सारी चीजों में अंतर But होता the है। one thing is that पर एक चीज है, they stay together वो forever साथ में रहते हैं हमेशा, because क्योंकि they are committed. क्योंकि साथ में वाचा बांधी है। So they are committed. That commitment cannot destroy your fighting, cannot destroy your Zoom, cannot destroy your galat. और क्योंकि आपने दूसरे से समर्पण करने का वादा किया है, इसलिए आपका झूठ, आपकी गलतियां, आपका पाप भी उस समर्पण को हटा नहीं सकता। So because of that commitment, तो उस कमिटमेंट की वजह से, so that same thing, love is a commitment. प्रेम एक कमिटमेंट है। Without commitment, बिना कमिटमेंट you can't do nothing. आप कुछ नहीं कर सकते। So now without commitment to God, जब तक आप प्रभु से कमिटमेंट नहीं रखते, so you say that I love God, हम कहते हैं प्रभु से प्रेम करते हैं, but whatever you want to do, पर करते वो है जो हमें अच्छा So you लगता didn't है। have commitment इसका मतलब कमिटमेंट that नहीं I है must go to church, कि नहीं मैं चर्च में I जाना must है, read Bible, मुझे बाइबल पढ़ना I है, must grow, मुझे पढ़ना ही I है, must to do things. मुझे काम करना So है। when we love God, जब प्रेम करते हैं we need to प्रभु have so many commitment, से, तो बहुत सारी वाचाएं बांधते हैं, and so with that, without that commitment, और बिना उस वाचा के we cannot able to work. हम काम नहीं कर पाते। So commitment is very तो important. कमिटमेंट बहुत जरूरी So है। love means commitment. तो प्रेम मतलब समर्पण। So you need to commit to God आपको प्रभु से वाचा बांधनी है to obey Him. कि आपको प्रभु की आज्ञाओं पर चलना है। See, commitment is what? कमिटमेंट क्या है? Obey. बात मानना, To obey God. प्रभु की बात मानना। So you are so love that love cannot able to express all, प्रेम सब कुछ नहीं दिखा सकता, but the action you can see. लेकिन आपके कार्य में दिखाई देता है। So when you hate someone, जब किसी नफरत करते there हैं, also we see action. वो भी कार्यों में दिखाई When देता we है। love someone, जब किसी प्रेम करते there हैं, also we see वो भी action. कार्यों में दिखाई देता है। So now, if you love God, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, you must obey तो आप प्रभु की बात मानते हैं। what He said. क्या प्रभु ने कहा है? And then what God said. और परमेश्वर ने क्या कहा है? We have so many things. हमने बहुत चीजें पढ़ी है। And then also when we say that we love God, हम कहते हैं प्रभु से प्रेम करते हैं, but if you didn't have obey, लेकिन अगर आपने बात नहीं मानी, that means you are not loving God. मतलब प्रेम नहीं है। Or if we say we love God, अगर हम कहते हैं प्रभु से प्रेम करते हैं, but if we are not keep His commandment, लेकिन हम प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चलते, that means we are just speaking. इसका मतलब सिर्फ हम बोलते हैं। But if we say we love God, लेकिन अगर हम कहते हैं प्रभु we से keep प्रेम His करते हैं, commandment, आज्ञाओं पे मानते हैं, or we
we obey Him, बात मानते हैं, then that action shows that we love God. तो वो एक्शन दिखाता है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। And then also second greater things. और दूसरी बड़ी वाचा, God said in verse 39, प्रभु ने कहा 39 love your neighbor as yourself. अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, See, as yourself. अपने आप जैसा। You just take it out. हम देखें, You love your neighbors. अपने पड़ोसी से प्रेम करें। Now, for example, this is now our neighbors. जैसे मान लीजिए अभी हमारे पड़ोसी हैं। Now, mommy and then कहता आप लोग बैठा है. So now, can you love that person just as yourself? क्या आप बिल्कुल अपने जैसा प्रेम अपने पड़ोसी से कर पाते हैं? So now can I love Preeti just as जैसे myself? पास्टर अपने आप से प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम वो मुझसे कर पाएगी। But what is it? In reality, in the pulpit, आप पुलपिट में जैसे खड़े हैं, very difficult. ये बहुत मुश्किल है। You want to love somebody, आप प्रेम तो करना चाहते हैं, but you can't love just as the way you love. पर जैसा प्रेम अपने आप से करते See, हैं, the way वैसा I love, जिस तरह से पास्टर प्रेम करते Myself. हैं अपने आप से, very difficult to love other person. दूसरे को वैसा ही प्रेम दिखाना बहुत मुश्किल है। We are not giving 50%. हम 50% भी ढंग से नहीं दे We are पाते, just giving little. हम थोड़ा दिखाते Only हैं, 1%. 5-10% तो या हम सारी चीज हम लोग अलग प्रिजर्व करते हैं। नहीं, ये तो मेरा फर्स्ट बनता है। फर्स्ट तो मेरा को ज्यादा लेना है, वो को थोड़ा देना है। फर्स्ट तो मेरा को खाना है, वो को थोड़ा देना है। फर्स्ट तो मेरा को प्रे करना है, वो को बाद में करना है। फर्स्ट तो मेरा को तैयारी करना है, वो को बाद में देख लेंगे। So we are first is that you say that let them see what you do, you love your first. तो सबसे पहले हम अपने आप से प्रेम करते हैं, फिर समय बचता है, जो चीजें बचती हैं फिर उसको हम दूसरों को देते हैं। So now if you give also you are not really loving and doing that. अगर आप देते भी हैं किसी को तो पूरा दिल और पूरे प्रेम से नहीं देते हैं। This is what I'm saying. This is really true practically. और ये सच है, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। See, God said love your neighbor as yourself. मैंने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। Even forget about your neighbors. पड़ोसी तो छोड़ दो, Your husband and wife. खुद के पति पत्नी You से can't love your husband just as the way you love जैसे yourself. अपने आप से प्रेम करते वैसा अपने पति से भी हम नहीं कर You पाते। can't love your children the way that you love. अपने बच्चों से भी वैसा प्रेम नहीं कर You पाते। can't love your brother and sister the way you love yourself. अपने भाई बहनों से भी नहीं कर पाते। See, then how can we love our neighbors? तो पड़ोसी को तो कहाँ पहुँचेगा? Then also the Bible says, who is your neighbors? सिर्फ बाइबल पूछती पड़ोसी कौन है? Our neighbor is our enemy. हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन। Oh, then God said, love your enemy just the way you love तो yourself. कहते हैं अपने दुश्मन से अपने समान प्रेम करो। Very difficult. बहुत मुश्किल है। The enemy to छोड़ दो, enemy to माफ कर दो भी हाँ हम लोग के पास आएंगे, हम नहीं। आपने तक तो मेरा पास मेरा लाइफ ऐसे मेरा जिंदगी में ऐसा कर दिया, मैं इतना माफ कर दिया, अभी तो नहीं कर पाएंगे। तो हम no you commit that you should not love him. तो इसलिए हम पूरा मन बना के रखते हैं, नहीं इससे तो हम प्रेम कर ही नहीं सकते। ये तक तो देखेंगे, लेकिन ये तक तो मेरा क्रॉस मत कर। हम ऐसा होता है ना, ये तक तो मैं आपको देखेंगे, लेकिन ये तक तो मेरा लाइफ में क्रॉस मत कर। So that is we have give some many boundary. मतलब बहुत सारी बाउंड्री बना के रखते हैं। So that is not God talk about. तो प्रभु उसके बारे में बात नहीं करते। So now to love the people, तो लोगों से प्रेम करने के to लिए love our neighbors, अपने पड़ोसी से to प्रेम करने, love even ourselves. अपने आप से प्रेम करने के Today लिए। many people even they didn't love themselves. आज बहुत लोग अपने आप खुद से प्रेम नहीं कर पाते, Even they didn't love themselves. अपने आप से प्रेम नहीं रखते। Then how can they love others? तो दूसरों से प्रेम कैसे? Then how can they love God? वो प्रभु से प्रेम कैसे रखेंगे? See, everything starts from ourselves. हर चीज हमारे से ही शुरू होती है। If you don't know the language that you love yourself, अगर आप अपने आप से प्रेम करने की भाषा नहीं then how जानते, can you love God? आप प्रभु से कैसे Then प्रेम how करेंगे? can you love others? आप दूसरों से कैसे प्रेम Because करेंगे? everything is start from you. हर चीज तो आपसे ही शुरू होती है। So now many people they did love आज themselves. बहुत लोग अपने आप से प्रेम That's why करते they हैं। cut, they drink, इसलिए they रात भर smoke, कर लेते हैं, नस काट लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, and they take medicine. दवाइयाँ खा लेते हैं। All these things why? ये सब चीजें कैसे हो जाती हैं? See, if you say I love myself, अगर मैं कहती हूँ नहीं मैं अपने आप से प्यार करती then हूँ, you drink wine, और मैं फिर शराब भी पी लूँ, you smoking, फिर मैं सिगरेट पी लूँ, then in the end what you do? अंत में क्या होगा? Because of your work, हमारे काम की वजह से now your stomach liver fail, फिर लिवर खराब हो जाता है। and you see the smoking people, और जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको देखिए, the smoke inside their body. उनके जब अंदर वो धुआं जाता है, That we can see that even the doctor they say that inside all become yellow. तो आप Black, देखते black. हैं कि अगर आप कभी YouTube पे देख रहे हैं पिक्चर शुरू से पहले भी दिखाते हैं कि फेफड़े बिल्कुल काले पड़ जाते हैं उनके अंदर गंदी So करते when हैं। you say you love yourself, अगर आप कहते हैं अपने आप से प्रेम करते हैं, but we do so many bullshit
then how can you love others? तो आप फिर दूसरों से प्रेम कैसे कर पाएंगे? Amen. Yes, let's go. So that is the things that we are. Yes, see. So today we are talking about. I will come to the true love. तो आज बात से बात कर रहे हैं सच्चे प्रेम। But before we go to the true love, सच्चे प्रेम जाने से पहले we need to know the foundation, the root. पहले हमें बुनियाद पता होनी चाहिए। So now we need to love ourselves. हमें अपने आप से प्रेम करना आना चाहिए। Then now God said the greatest commandment, तो परमेश्वर कहते हैं सबसे बड़ी आज्ञा love the Lord. परमेश्वर से प्रेम करें। So now when you love and then now when you love, जब आप प्रेम करते हैं, the first thing when you love God, सबसे पहली चीज आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। then second what you do, दूसरी चीज क्या करते हैं? you will love yourself. आप अपने आप से प्रेम करते हैं। When you first thing when you love God, जब आप परमेश्वर से that's प्रेम what God said, the first commandment I have given to you. इसलिए परमेश्वर ने कि जो मैं सबसे पहली आज्ञा तुम्हें The दी, greatest commandment. सबसे बड़ी आज्ञा। Forget about the 10 commandments. 10 आज्ञा को तो छोड़ दो, Because that 10 commandments hold into this commandment. क्योंकि 10 आज्ञा का जो सबसे सब मिला जुला है वो इसी एक आज्ञा के अंदर है। See, if you love God, अगर आप परमेश्वर से प्रेम then करते all the other 10 commandments, हैं, तो बाकी की जो आज्ञाएं हैं what is that? वो क्या है? Everything is finished. हर एक आज्ञा उसी आज्ञा से खत्म हो जाती है, Fulfill the law. पूरी हो जाती है। See, when you love God, जब आप प्रभु से प्रेम करते you हैं, will not commit adultery, आप व्यभिचार करेंगे, you will not lie, आप झूठ नहीं you will बोलेंगे, not worship idol, आप मूर्ति पूजा नहीं you will करेंगे, not cheat, आप चीटिंग you नहीं will not करेंगे, jealousy, आप जलन नहीं you will not करेंगे, envy, आप बुराई नहीं you will करेंगे, not all kinds of evil. सारे गलत काम आप करेंगे ही नहीं। When you love God, जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे, because these things that God doesn't like ये it, प्रभु को ये चीजें पसंद नहीं you है, will obey. आप बात मानेंगे। So love means what? प्रेम क्या है? Obey God. प्रभु की आज्ञाओं पर चलना। Obey the word of God. प्रभु के वचन Then what is the obeying the word of अब God? प्रभु के वचन पे चलने का अर्थ क्या है? Don't be hatred one another. एक दूसरे से नफरत मत करो, Don't be jealousy. जलन मत Don't करो, be cheat. धोखा Don't मत करो, lie. झूठ मत बोलो, Don't grudges. या फिर एक दूसरे का बुरा मत सोचो, Don't proud. घमंड मत करो। Don't so many things is there. कितनी सारी चीजें हैं। See, when you love God, जब आप प्रभु से प्रेम करते you हैं, will obey all His teaching. तो आप प्रभु की सारी व्यवस्था पे चलेंगे। That is what God said, the greatest commandment that I am first, and the greatest commandment, the law is the love the Lord. इसलिए परमेश्वर ने कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना। This is very, very ये important. बहुत जरूरी है। That's why I really want the people to know what is that. No. इसलिए पास्टर कहते हैं, मैं चाहती हूँ कि लोग So when जानें। you love God, जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, God hate lie. प्रभु को झूठ बोलना पसंद You नहीं, will not do. आप नहीं When करेंगे। you love God, जब आप प्रभु से प्रेम God करते हैं, hate committing adultery. प्रभु का व्यभिचार मत करो। When you love God, जब आप प्रभु से प्रेम God करेंगे, hate worshiping प्रभु idol. को मूर्ति पूजा नफरत When you है। love God, जब आप प्रभु से प्रेम करते God हैं, hate fighting. प्रभु को लड़ाइयों से God नफरत, hate pride. घमंड से नफरत, God hate selfish. अपना अपना सोचने से God नफरत hate है, greedy. या फिर लालच से नफरत See, है। if you love God, अगर आप प्रभु से प्रेम you करते will not do all these things. हैं, आप ये चीजें नहीं करेंगे। But you will love God. पर आप प्रभु से प्रेम ही नहीं कर रहे, You will do whatever you तो want. फिर जो आपको अच्छा लगता है वो करेंगे। See, if you didn't love God, अगर आपको प्रभु से प्रेम नहीं, whatever come in your way जो भी आपके रास्ते में आएगा in your life, आपके जीवन झूठ में, बोलेंगे, एंग्री करेंगे और दूसरों को फरेंगे, दूसरों को मारेंगे, सारी चीज आप करेंगे. Because you did love God. क्योंकि आप प्रभु से प्रेम नहीं कर रहे। That is what God said the first thing. इसलिए प्रभु ने कहा पहली चीज Love God. प्रभु से प्रेम Then करो। all the 10 commandments तब बाकी की 10 आज्ञाएं without struggle, बिना मुश्किल की, without trying, बिना मेहनत के you will just do it. आप आसानी से कर पाएंगे। Amen? आमीन। Then that is why और इसलिए God said first thing, तो परमेश्वर ने पहली चीज love God. परमेश्वर से प्रेम करें। If I love God, अगर आप प्रभु से प्रेम करेंगे I will love myself. तो अपने आप से प्रेम करेंगे। How? कैसे? I will not do evil to my body. हम अपने शरीर से गलत नहीं I will करेंगे। not drink the things that God doesn't जो want. चीजें प्रभु नहीं चाहता मैं नहीं I will करूंगी। not eat the things that जो God चीजें doesn't प्रभु नहीं want. चाहता मैं नहीं I will करूंगी। not speak the things that प्रभु से नहीं God कहूंगी, doesn't मुझे want. नहीं कहनी। I will not spoil my मैं body. अपने शरीर को खराब नहीं I करूंगी। will not ganda nahi karenge. And so when I love God, I will not defile my body. तो जब प्रभु से प्रेम करेंगे तो अपने शरीर को गंदा नहीं करेंगे। Amen. आमीन। If you did love God, अगर आप प्रभु से प्रेम नहीं करते you will do all these things. तो आप सारे गलत काम करेंगे। You will spoil your body. अपने शरीर को खराब You करेंगे, will spoil your life. अपने जीवन को खराब करेंगे। That's what God said. Love the Lord with all your इसलिए heart. प्रभु ने कहा पूरे दिल पूरे मन से परमेश्वर पिता से प्रेम करें। God didn't say love the Lord only your heart. प्रभु नहीं कहता कि सिर्फ अपने दिल से करें, Heart is inside. यानी कि सारे मन से, Heart is in the middle of your sense.
जो आपका हृदय होता है वो आपकी छाती में God होता said है। the first thing, love God with all your heart. प्रभु कहता है कि प्रभु से पूरे मन से प्रेम करें। God is not seeing your body flesh. प्रभु आपका शरीर नहीं देखता, God sees your heart. आपका हृदय देखता है। And God, according to your heart, God works. और आपके हृदय के अनुसार प्रभु कार्य करता है। So now, second, दूसरी चीज, first thing God said, love the Lord with your heart. प्रभु को पूरे पूरे मन से प्रेम करें। But when you are loving with your heart, पर जब पूरे मन से प्रेम करते हैं then you see all the other things are easy to go. तो आप देखते सारी चीजें आसान हो जाती हैं। Because wherever your heart is, कि जहाँ पर आपका दिल होगा wherever your body is, वहीं पर आपका शरीर भी होगा। there's a heart is very important. इसलिए दिल बहुत जरूरी है। आप लोग का मन है, चर्च में आपका दिल है, तो आपका शरीर आएगा। कोई जगह भी हम लोग का हार्ट है, उधर पहुंचाएगा। That's why God saying, if you love your heart, then your body will be there in God. तो प्रभु कहते हैं कि अगर आप कोई दिल से आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका शरीर अपने आप ही वहाँ पहुँच जाएगा। Then second, God said, फिर दूसरी चीज, love the Lord with all your heart and with all your soul, our soul. और यहाँ लिखा है अपने प्राण से And then also with all our mind. सारी बुद्धि के साथ। See, first thing God said, love your heart, प्रभु कहता है प्रभु से प्रेम करें soul. पूरे प्राण से, Mind. पूरे मन से, But if you बुद्धि read से। other thing, then even Bible talk about your strength. और बाइबल में एक जगह पे लिखा है कि अपने सामर्थ्य से, Strength सामर्थ्य से, is involving physical. मतलब कि शरीर से भी। So now, so these things are very, very important. तो ये चीजें बहुत बहुत जरूरी है। But if you're only loving your heart, God, लेकिन अगर सिर्फ दिल से ही आप प्रभु से प्रेम करते it हैं is not yet perfect. तो ये पूरा नहीं है, Because your body will somewhere else. क्योंकि आपका मन कहीं और होगा। And so God said that love the Lord with your heart, तो प्रभु से पूरे with your दिल से, soul, पूरे प्राण से, with your mind. बुद्धि से। So when you do that, जब ऐसा करते हैं then now you have the love of God. तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है। Then you will love yourself, तो आप अपने आप से प्रेम करते हैं, then love others तो also. आप दूसरे से भी कर पाते हैं। You see, when people who really love God, जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं they really love people. उन लोगों से प्रेम करते हैं। God loved Father. परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं। Jesus loved his Father. यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रेम किया That is why और इसलिए He can give His life for उन्होंने us. अपना जीवन हमारे लिए दिया, He offered His life. अपना जीवन दिया। All about God is all about love. प्रभु के बारे में हर एक चीज प्रेम से ही See चाहिए। how much you have sinned, कितना आपके अंदर how पाप है, much you have committing कितना wrong, आपने गलत किया, how much you have done wrong, कितना आपने गलत किया, but still फिर भी His love उनका प्रेम always covers us. हमेशा हमें कवर करता है And His love और उनका प्रेम always forgives us. हमें माफ करता है And His love और उनका प्रेम always sanctifies us. हमें शुद्ध करता है, His love उनका प्रेम always cleanses us. हमें साफ करता है। Amen? आमीन। So now, today we are talking about true love. तो आज हम सच्चे प्रेम के बारे में So बात to करेंगे। have the true love, सच्चा प्रेम होने के लिए love the Lord with all your heart, with all your mind, with all परमेश्वर your से soul. पूरे दिल, पूरे मन, सारी शक्ति और सारे प्राण से। So now we come to that today topic that true. What is the true love? तो सच्चा प्रेम क्या है? Let us see. I have talked about that. To have that love, तो उस प्रेम को पाने के लिए with your strength, with your power, अपने without God, सामर्थ्य से, अपने बुद्धि से you can never ever love yourself अपने आप से प्रेम नहीं कर सकते and love others. और दूसरों से। So first thing, सबसे पहले everyone हर किसी को pray harder बहुत प्रार्थना करनी है to love God. प्रभु से प्रेम करने के लिए। If you did love God, अगर वो प्रभु से प्रेम you नहीं, can't do anything. आप कुछ नहीं कर पाएंगे। If you did love God, अगर वो प्रभु से you प्रेम cannot नहीं, वो इंसान को भी सेवा नहीं कर पाएंगे, चर्च में भी सेवा नहीं कर पाएंगे, और प्रभु का you can't please God. और आप प्रभु को खुश नहीं कर But सकते। when you love God, लेकिन अगर प्रभु से प्रेम करते हैं, automatically तो फिर क्या होगा? you will love others. आप दूसरों से प्रेम कर पाएंगे। When you love God, जब आप प्रभु से प्रेम you will करते हैं, not try to love others. आप दूसरों से प्रेम करने की कोशिश नहीं करेंगे। Automatically, अपने आप you will fall in love people. आप दूसरों से प्रेम कर Fall in पाएंगे। love means not see when you talk about last Friday I have already talked. When you love, the love comes, then don't think about sex, don't think about these are not the talking about love. That is जब not आप love. प्रेम की बात करते हो तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या व्यभिचार की बात में ना सोचे। That is not talking about love. तो Okay? उस प्रेम की बात But the करें। Bible says we already read in 1 Corinthians chapter 13 verse पहला 8. कुरिन्थियों 13 अध्याय का 8 The वचन Bible says love is what? बाइबल कहती है प्रेम क्या Love है? is patient, प्रेम धीरज है, kindness, दया है, humble, नम्रता है, self-control, अपने पर नियंत्रण है, no selfish, अपना अपना सोचना नहीं no है, pride. अपना घमंड नहीं है। So that is the talk about love. तो उसे प्रेम कहा गया है। So if you didn't have kindness, अगर आपके अंदर दया नहीं है, if you have envy, आपके अंदर अगर if बुराई you है, have jealousy, जलन है, if you have grudges, अगर आपके अंदर ग्रज है, if you have pride, घमंड है, that means no love. तो प्रेम नहीं है। That's why
last time I talked about if this world has the love of God, अगर इस दुनिया में परमेश्वर का प्रेम होता, then this will be not full of people, kindness one another, humble one another, helping one another, and save one another, and take care one another. तो इस दुनिया में ऐसे लोग भरे होते जो एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे का ख्याल रखते, एक दूसरे की मदद के लिए हर समय खड़े होते। So, but if because of no love, लेकिन प्रेम ना होने की वजह से fighting for their own position, अपने पोजीशन के लोग लड़ाइयाँ करते हैं, pride, घमंड करते हैं, I want this one, मुझे ये I चाहिए, want the power, मुझे सामर्थ I want चाहिए, these things. मुझे ये So चीज they चाहिए। ended in corruption. और अंत में क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है। They went to the different way that because they want for themselves, they only want that they can become a powerful. तो लोग अलग जवाब में जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ अकेला सामर्थ चाहते हैं। And because of that, they landed into grudges, fighting, and from there, the starting, no forgiving, and misunderstanding, all kinds of rubbish things start. Then people cannot able to associate together. People cannot able to forgive one another. They keep a hatred towards one another. और फिर क्या होता है? लोग अपने अंदर नफरत रखते हैं, बुराइयां रखते हैं, जलन रखते हैं, झूठ रखते हैं और वो चीजें आगे नहीं जाती। But in love, these things are not पर there. प्रेम में ये चीजें नहीं है। So we talk about the language of love. Bible जब talk हम about. परमेश्वर के प्रेम की भाषा की So बात करते today I say the true love means what? हैं, saccha प्रेम क्या है? True love means the Bible says सच्चा प्रेम बाइबल बताती है patience. धीरज है। So true love can be a self, suffer without complaining or get without angry, and always humble and gentle. Be patient with one another, making allow for each other because you have love. तो सच्चा प्रेम क्या है? जब आप एक दूसरे जलन नहीं रखते, घमंड नहीं करते, एक दूसरे के पाप होने के लिए भी जगह छोड़ देते हो। So true love is तो that. सच्चा प्रेम क्या है? Love is a patient. प्रेम में धीरज है। You will suffer for, आप you दूसरे will के लिए सह लेते हो, be patient for one another. धीरज रख लेते हो। But if we didn't have a patience, लेकिन अगर धीरज नहीं है, you want trust. अगर नहीं, अब भी चाहिए, Now you want one now. अब भी चाहिए, And because of that, और उसकी वजह से you will go and take other position. आप दूसरों की जगह भी ले लेते हो। Or you have no you are not waiting for your time. आप अपने समय का इंतजार नहीं करते, You are not having patience. आप में धीरज नहीं है, So because of that, we will do something wrong. और इसकी वजह से हम कुछ गलत कर लेते So हैं। love means the true love is the patience. तो सच्चा प्रेम क्या है? धीरज। No complaining, कोई कंप्लेन नहीं है, no grumbling. कोई भी शिकायत नहीं है, But when you do something, बस हम कुछ करते हैं, we are complaining one another, हम शिकायतें करते हैं, grumbling one another, हम शिकायतें करते हैं, grudges one another, एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, or angry one another. एक दूसरे पे गुस्सा करते हैं, That is no love. वो प्रेम नहीं है। So let us see what is really love. तो सच्चा प्रेम क्या है? Think about yourself today. आज हम अपने बारे में देखें। Many times we are so much good thing complaining, बहुत बार क्या होता है, अच्छी चीजों में भी शिकायतें करते हैं and we are grumbling. और हम उल्टा बोलते हैं, Grumbling means मतलब कुड़कुड़ाते हैं। you do things, आप काम तो कर रहे हैं, but inside, पर खुशी से नहीं कर रहे, you inside you're grumbling. आप कुड़कुड़ कर रहे हैं। मेरा वो मम्मी ने इसका काम कर देते रहते हैं, बता तो नहीं है, लेकिन अंदर से कुकरा कहते हैं। So अंदर से you are grumbling. तो अंदर से कुड़कुड़ाते हैं। रोटी तो बना रहा है, लेकिन अंदर से गुस्सा में, मेरा वो इतना परेशान दे रहा है, और खाना तो बना रहा है और गुस्सा में grumbling. और क्या था, चर्च में भी काम तो कर रहे हैं, पास्टर तो मेरे को ऐसे करते रहे, कर तो रहे हैं, लेकिन इंसान को देखिए खाना, लेकिन अंदर से तो इतना complaining, grumbling. So God said there is no love. तो परमेश्वर कहता है प्रेम नहीं है। If you have these things, अगर ये चीजें हैं, another person you are serving, another person you are doing may not see you. तो सामने वाला व्यक्ति तो शायद ना चाह पाए, God is seeing you. लेकिन प्रभु So when you are grumbling, जब कुड़कुड़ करते when हैं, you are complaining जब शिकायतें करते towards हैं one another, दूसरों के लिए, then you know that God is seeing you. तो आपको पता होना चाहिए कि प्रभु देख रहा है। God saying if you love that प्रभु person, कहते हैं कि अगर तुम उनसे प्रेम करते हो, you will be serving happily. तब खुश होकर सेवा करोगे, You will be serving with patience, धीरज के साथ सेवा करोगे, humble, नम्र हो, self-control. नियंत्रण But we रखिए। didn't have patience. पर हमें धीरज तो नहीं होता है। मैं मेरा को ऐसे कर दिया तो मैं डबल करेगा, मेरे को ये बता दिया तो मैं डबल बताएंगे, और मेरे को बताया तो मैं समझाना पड़ेगा. See, we didn't have patience. हमें धीरज नहीं होता। Then because of that, small छोटा का काम है ना बड़ा बनता है, small problem को हम बड़ा बनते हैं,
Because no patience, no forgiveness. क्योंकि धीरज नहीं होता है, माफी भी नहीं होती है। ये मेरे को नहीं दिया, ठीक है नहीं दिया, बाद में हो जाएगा ना। लेकिन इस चीज में हम लड़ाई करते हैं, क्यों मेरा को प्यार नहीं करना, क्यों मेरा को क्यों ना ऐसे बारे में बात कर रहा है, क्यों मेरा को ऐसे बता रहा है, क्यों मेरा को ऐसे चीज में समझा रहा है। तो we are grumbling, तो हम शिकायतें करते हैं, we are complaining. हम शिकायतें करते हैं। So that is the Bible said that is no love. तो बाइबल कहती है वो प्रेम नहीं है। Love means what? प्रेम क्या है? Love means that you are suffer without complaining. तो प्रेम क्या है? दूसरे के लिए You सहन are करते हो, doing without complaining. बिना शिकायत के You काम are करते हो, working without complaining बिना शिकायत के काम करते हो, or without angry. बिना गुस्सा हुए, But you are kindness towards one another. पर दूसरे के साथ नम्र रहते हो। That's the Bible says. Let's go to Ephesians 4:2. खोलते हैं इफिसियों 4 का 2। Ephesians 4:2. Ephesians chapter 4 verse 2. The Bible says, I read here. Ephesians यहाँ chapter 4. लिखा है Read. इफिसियों 4 का 2, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहन लो। Amen. So the Bible says, patient with one another. एक दूसरे का धीरज रखो। 267 पेज पर। So patient with one another. एक दूसरे का धीरज रखो। But starting from myself, लेकिन बाकी मैं अपने आप से अगर शुरू करूँ, nobody have no patience. किसी में धीरज नहीं है। कोई चीज ना बताया तो हम नो इंतजार करते हैं कब बताना है नहीं। कोई चीज ना हम लोग को कंप्लेन करे तो हम इंतजार करते हैं, हम डबल चीज लेके आते हैं। So the Bible says that is no love. तो बाइबल कहती है वो प्रेम नहीं है। If you love, अगर आप प्रेम करते हैं, you will be able to be patient to endure. आप धीरज रख पाएंगे, You will be able to patient to control. आप सह पाएंगे, You will be patient and pray for that person. आप प्रार्थना भी कर पाएंगे। So that is love talk about. ये है प्रेम। Love is not about, meeting people, kissing, in the park, or in the you are meeting and talking. No, love is all about patience तो प्रेम क्या है? प्रेम सिर्फ धीरज है towards one another. एक दूसरे के। So patience means what? धीरज क्या है? No complaining. की शिकायत नहीं है। You are long suffering. आप लंबा सफर करते हो। Amen. आमीन। You all are listening? Yes, Pastor. So listen nicely, so that I really want that, so that when you love, know the meaning of the love, then this church will really bless. तो अगर कलीसिया के अंदर लोग प्रेम का अर्थ जान पाएंगे तो कलीसिया एक अच्छी कलीसिया हो जाएगी। Sometimes we grow in the word of God. कई बार हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते We हैं। grow in gift. हम वरदानों में बढ़ते हैं। You are growing in prayer. आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। You are growing in reading Bible. आप बाइबल पढ़ने में बढ़ रहे You हैं। are growing in faith. आप विश्वास में बढ़ रहे हैं। But if you didn't have love, लेकिन अगर प्रेम नहीं है, all these things become a mess up in the church तो ये सारी की सारी चीज चर्च के अंदर खराब हो जाएगी or in your family. और आपके परिवार में। हम प्रभु में तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पियर नहीं है ना, ये बढ़ना कुछ नहीं है। हम प्रभु में तो प्रार्थना तो कर रहे हैं, फास्टिंग तो ले रहा है, हम प्रभु में तो दे रहा है, लेकिन पियर नहीं ना। बाइबल बताती है सारे कुछ नहीं। पियर बहुत जरूरी है। और पियर में क्या? पियर मतलब क्या? पेशेंस, दूसरों को हेल्प करना, दूसरों को हम्बल करना, अपना प्राइड नहीं दिखाना, गम्बलिंग मत करना, कंप्लेन मत करना। That is the Bible. So when we are patient one another, जब एक दूसरे धीरज रख पाते हैं, when we love one another, एक दूसरे प्रेम रख पाते we हैं, will no problem in the church. तो हमें चर्च में प्रॉब्लम नहीं We होगी। will no problem in your house. हमें घर में प्रॉब्लम नहीं It will होगी। no problem in the office, ऑफिस में भी नहीं in the होगी। business, in the job, every place. हर एक जगह पर। What is the problem? परेशानी क्या है? Our problem is that हमारी परेशानी है complaining, क्यों शिकायत grumbling, कुरकुर करते हैं and pride, और घमंड करते हैं। or to no other person that you don't want to be some other person. या दूसरे व्यक्ति की सेवा नहीं करना चाहते We हैं। want the I am the हम boss. सोचते हैं हमें बॉस बन जाए I am the person, the very good person, और मैं ही हूँ जो सबसे अच्छी हूँ। and we think the other person are nothing. हम तो दूसरा व्यक्ति तो बेकार है। That is the problem ये परेशानी है in everywhere. हर जगह पर। Amen. आमीन। And the love, the true love means what? और सच्चा प्रेम क्या है? Kind. दयालु। So what is kind? दया क्या है? Kind means that contains with thankful for blessing and not what is the position, does not envy others. So the kind means that you are not envy to others. तो दया का मतलब क्या? दूसरे बुराई नहीं करते। What is the envy? Jealousy, okay? तो जलन और बुराइयां जो होती है, Listen, envy and jealousy तो जलन और बुराइयां is the biggest words and cancer and बीमारी. एक कैंसर और किसी बड़ी बीमारी से भी बढ़ता है। Today because of jealousy, आज जलन की वजह से, envy, बुराई की वजह से we are
very difficult to associate with people. हमें लोगों के साथ बैठना मिलने में परेशानी होती See, है। envy, jealousy, you can't see. आप बुराइयों को देख नहीं सकते, जलन को देख नहीं सकते, But this is inside. पर वो अंदर से होती है And these are come from Satan. और शैतान से आती है। So when you are envy, तो जब आप बुराई करते हैं, when you are jealousy, जब जलन करते हैं, whatever the person doing, जो भी सामने व्यक्ति करता you है, will be always jealous. आप हमेशा ही जलन करेंगे। But always remember, हमेशा याद I रखें। said already in the last पास Friday, मेरे पिछले शुक्रवार को भी करेंगे। always remember, हमेशा याद रखें, everyone, हर रोज, हर कोई in this world, इस दुनिया में people were better than you. लोग आपसे बेहतर भी होंगे, People were beautiful than you. लोग आपसे सुंदर भी होंगे। See, this world, many people are really beautiful. आप देखिए इस दुनिया में सच में कुछ लोग बहुत ही सुंदर हैं, But we should not be jealous. पर आप उनको देख के जलन नहीं करनी है। People are more wiser than you. आप ज्यादा बुद्धिमान भी लोग होंगे ही होंगे। People are more smart than you. आपसे स्मार्ट लोग भी दुनिया में होंगे। Don't think that I'm the most smartest, I'm the most beautiful. ये ना सोचे कि मैं इतना सुंदर, मैं इतना स्मार्ट, So jealousy, envy come from where? तो जलन कहाँ से आती है? Oh, that person is अगर beautiful. वो ज्यादा अच्छी So है, we want to put down तो that उसको one. नीचे गिराना चाहते हैं, What we do, we want to put into a sin. हम उसको शर्मिंदा करना चाहते हैं। So in this world, तो इस दुनिया में people are more than me, more than me, the maybe good qualified pastor more than me. तो पास्टर के मुझसे बेहतर ही बहुत सारे I पास्टर should हैं, not jealous those पर people. वो देख के जलन नहीं करनी है। Many people more than me preaching will be there. बहुत अच्छे लोग I पास्टर, should not jealous those things. मुझे जलन नहीं Many करनी। people dress up more than me. पास्टर से ज्यादा अच्छे कपड़े I पहनते should not होंगे, jealousy तो this जलन thing. नहीं करनी है। But what is the jealousy? पर जलन क्या है? When the somebody is better than जब you, कोई आपसे बेहतर होता है, or some people is favored than you, या कई लोगों को आपसे तरफदारी मिलती है, then now we become तो jealous. जलन आनी शुरू हो जाती है। This is so evil. ये बुरा है, God really hate. प्रभु को पसंद नहीं। And the jealousy is there. जलन क्या है? When the person is doing you more than us, more than me, then we strive jealous inside starting. और जब कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा बेहतर करता है, तो हमारे ऑटोमेटिक जलन आ जाती है। Then what do we do? तो हम क्या करते हैं? We started gossiping. फिर हम चुप करते हैं। We started making that person making हम problem. उस व्यक्ति को छोटा बनाना चाहते हैं। You go to आप somebody, किसी के पास जाएंगे, you know पता है that person is bad. उसको देखा कितना गंदा है, He is speaking like that, she is speaking like ऐसे that. बोलता है, ऐसे बोलती She है, is doing like that. ऐसे करते हैं। Or pastor also going with her. पास्टर भी देखो उसके साथ होली। See now jealousy has envy has no all kinds of evil now gossip started. तो जलन होने से क्या होता है? चुगलियां शुरू हो जाती हैं, Then from there both become a और बाद fighting में start. दुश्मन हो जाते हैं, Now there is no love between them. और फिर प्रेम नहीं रहता। So that is the things that so love is not like that. तो प्रेम ऐसा नहीं होता। So the Bible says when love means kind one तो another. बाइबल कहती है दूसरे पे दया दिखाओ, Remove our hatred. नफरत निकाल दो। Other person better than thank God for that. अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे बेहतर है तो If the another person is beautiful, अगर व्यक्ति सुंदर है, praise God. प्रभु को If धन्यवाद। another person is doing better than कोई you, व्यक्ति आपसे बेहतर कर रहा है, if another person is interpreter better than you, then we should praise अगर God. कोई आपसे बेहतर अनुवाद करता है तो उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। But when another person is interpreter better than we say, no, we started pull down that person. लेकिन कोई व्यक्ति हमसे जो बेहतर करता है तो हम उसको नीचे गिराने लग जाते हैं। Then we started, we can't do nothing. हम फिर कुछ करते हैं, But because of jealousy, what we do? लेकिन जलन से क्या होता है? We go and gossip about that हम person. जाके चुगली करते हैं, And we bring out evil. हम उसकी बुराइयां You निकालते know हैं। that person is like that. You know that person is like that. You pull down the people's life. आप लोगों के जीवनों को You are नीचे गिराते killing the people. हैं, उनको मारते हो। That is why envy is so wicked. Jealousy is so evil. इसमें आप देखते हैं बुराइयां और जलन कितनी बुरी है। Don't think, and then also today I was listening this morning, खास करके मैं आज सुबह सुन रही थी, one preacher. एक प्रचारक, When many a time when we preach, जब बहुत बार हम प्रचार करते हैं don't listen for others. तो दूसरों के लिए ना सुने, Today listen for yourself. अपने लिए सुने, Check yourself. अपने आप को देखें, And then our church will be a beautiful तो हमारा church. चर्च एक अच्छा चर्च हो जाएगा। So now, when we say, oh, this person is like that, today she must be there. Then if she is there, then she will say, no, listen, check तो जब ourselves. प्रचार सुनते तो हम सोचते हैं अरे वो दीदी नहीं है, अगर वो भी आपको सुनती बदल जाती प्रचार सुन के आज तो। Let us listen. लेकिन हमारा Any time when you listen for yourself. तो जब हम प्रचार सुने तो हमेशा अपने लिए सुने। Sometimes, oh, I wish that person should be here today. कई बार हम Listen सोचते to us. हैं यार काश वो भी आता तो वो भी सुनता प्रचार। That person is not here. वो भगवान But नहीं है, we are here. पर हम हैं। That means God wants to speak to you. मतलब प्रभु आपसे बात करना चाहता है। Amen. आमीन। And then also now, why God loved David? क्यों प्रभु दाऊद से प्रेम करता था? When he was committing Bathsheba जब उसने बचपन में पाप भी किया, in the book of Psalm 51.
भजन संहिता 51 में Why God said the Bible said the no David is the own of the God heart. तो बाइबल में लिखा है कि दाऊद कौन जो प्रभु के मन के अनुसार था। David is the committing sexual उसने immorality. व्यभिचार किया, David is the murderer, खून भी किया, but God loved him. तो प्रभु ने प्रेम किया। One thing is that पर एक चीज है, David दाऊद never complained others. उसने दूसरों की शिकायत नहीं When की। he committing sin, जब उसने पाप किया, he come to God. वो प्रभु के He पास didn't आया। say that, oh, Bathsheba is the king God. Why God I saw that woman? And he didn't complain Bathsheba. तो उसने बैतशेबा के ऊपर लालचा नहीं लगाया कि उसकी गलती थी, वो ही ऐसे नारी थी, मेरी गलती He है। didn't complain Uriah. उसने उराया को भी कुछ नहीं बोला। He come before God. वो प्रभु के सामने आया Have mercy on me, और Lord. अपने दया मांगी I have committing कि sin मैंने against पाप God. किया है। That is loving God. ये है प्रभु से प्रेम। But what we do? लेकिन हम क्या करते हैं? We never see our fault. हम अपनी गलती नहीं देखते। We always complain हम others. दूसरी गलती That person is saying like that. That person is speaking like that. That person is doing like that. उसने ऐसे किया। Why that person is like क्यों that? सामने वाला व्यक्ति के? We also something is there. That is why. हम भी तो गलत कभी-कभी कुछ करते हैं That is why we are coming out like that. और इसलिए ऐसा होता है। That's what God said. God loved David इसलिए परमेश्वर दाऊद से प्रेम because करता है। whatever he had done wrong, क्योंकि उसने जो कुछ भी गलत he किया, never complained उसने others. दूसरों को शिकायत He नहीं की। never pointing other fault. दूसरों की उंगली He नहीं उठाई। never pointing other sin. दूसरों के पापों को नहीं But बताया। he come before God. और वो प्रभु के सामने आया I the one who और committing बोला sin. कि मैंने ही पाप I the one who committing adultery to Bathsheba. मैंने ही व्यभिचार किया है बैतशेबा। I the one who killed Uriah. मैंने ही उराया को मारा है। He just come before God and complain himself वो प्रभु के सामने आता है, पूरी तरह शिकायत अपनी खुद की करता है and repent. और पश्चाताप That's करता why है। God loved David. इसलिए परमेश्वर ने दाऊद से प्रेम किया। So now, in this year, if you really want to be तो blessed, इस साल अगर आप सच में चाहते हैं कि आप आशीषित हो love जाएं, God. प्रभु से प्रेम करें, Remove all hatred. सारी नफरत निकालें, Remove all jealousy सारी जलन निकालें, towards one एक another दूसरे के लिए, in your family, अपने परिवार में, in your brother, sister, husband, wife, पति पत्नी auntie, में, uncle, आंटी अंकल in में, the church, चर्च in the में, members. मेंबर्स में Remove it. निकाल दीजिए। If the person is doing well, अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर if रहा the है, person is better than you, वो बेहतर कर रहा है, glorify God. तो प्रभु को धन्यवाद दें। But when the person is better than us, लेकिन कोई व्यक्ति जब हमसे बेहतर होता है, every human being, तो हर एक व्यक्ति the jealousy will come. तो जलन आती है। No. If your mother is, you have two children, अगर एक माँ के दो बच्चे हैं, what they do? क्या होता है? The one child is obey the mother. एक तो बात मानता है मम्मी की, So whatever child obey तो जो बच्चा बात मानता है, parents now. तो बच्चे प्रेम माता पिता भी Fight प्रेम to करते obey, हैं। no? See, there's a God. So when you love God, इसलिए आप परमेश्वर से प्रेम when करते you हैं, obey God, जब प्रभु की बात मानते हैं, God love you. तो प्रभु भी आपसे प्रेम But करते if we didn't obey हैं। God, लेकिन आप बात नहीं मानते, how God will love तो us? प्रभु कैसे प्रेम करेगा? He loves us, वो प्रेम तो करता है, but we can't able to receive. पर हम पा नहीं पाते उनसे कुछ भी। So when even in the church also, चर्च में भी ऐसा है, anybody love, कोई व्यक्ति अगर प्रेम करता है, anybody love to serve the Lord कोई प्रभु की सेवा जब करना चाहता है with all their heart. पूरे दिल से, I will love that person. तो पास के लिए मुझे भी उसमें प्रेम आता ही आता है। Don't be jealous. उसमें जलन होने की बात नहीं है। So I will love that person. पास के लिए उस व्यक्ति से प्रेम करती हूँ। If the person is not obey, कोई व्यक्ति अगर बात नहीं मानता, then how can we love? तो प्रेम कैसे In the दिखाएगा? family, परिवार you में say सारे बच्चों को मत किया करते हो, लेकिन एक इंसान है, एक बच्चा आपको आपको क्या कहते बात को मानते हैं, सारी चीज को मानते हैं, तो आप वो इंसान को ई देना कभी ज्यादा देते हैं, कुछ करना तभी कुछ ज्यादा देते हैं, पीर का वजह से। सो हम ऐसे प्रभु भी है, हम प्रभु को पीर करेंगे ना, प्रभु एक फूल देना है, लेकिन आप ओबे कर दिया, प्रभु का पालन को पा दिया, प्रभु का क्या था ओबे कर दिया, उसका काम कर दिया, तो प्रभु डबल ट्रिपल देता है। हम दूसरा कोई इंसान को प्यार करते हैं ना, तो हमको क्या है एक चीज मांगते हैं, तो हम दो तीन देते हैं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होते। कोई इंसान प्रीति ने मेरा वो कुछ कर दिया, तो हम प्यार करते हैं ना, वो इंसान तो मेरा सारी चीज मेरा ना बात को मानता है, तो हम डबल देने के अंदर से ग्रजेस नहीं है, अंदर से एम्बी नहीं है, जेलसीज नहीं है, अंदर से दिल से आता है, वो चीज प्रभु आशीष होता है। बाहर प्यार नहीं होता ना, इतना कंप्लेन करके, ग्रजेस करके, ग्रम्बलिंग करके इंसान करेगा, लेकिन इधर से ना मन से लेते हैं, हंस रहे हैं, बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर देते हैं, इतना कुकुरा करके, क्रमण करके, ऐसे करके देते हैं, वो प्रभु आशीष नहीं है। लेना वाला भी आशीष नहीं, देना वाला भी आशीष नहीं।
तो इसके लिए हम दे तो है, हम खाते हैं, हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का लाइफ में आशीष नहीं पहुंचाया। क्यों? तो हम लोग का अंदर सारे कंप्लेन, नो पेशेंस, नो लव, नो फॉरगिवनेस, नो काइंडनेस, नो हम्बल, नो सेल्फ कंट्रोल, सारी चीज अंदर बढ़ के हम काम करते हैं। ये चीज हटा दो, आप रियलिटी में आशीष में आएंगे, तो हम लोग का लाइफ आगे जाएगा। आमीन। So now another thing, true love means what? सच्चा प्रेम क्या है? Humble. दीन होना। See, we talk about love. जब प्रेम की बात करते हैं, Love is not about mwah. Love is all about patience, humble, self-control, तो प्रेम क्या है? प्रेम धीरज है, kindness. दया है। Now we talk about Isaiah only the kindness, now humble. तो जब हम बात करते हैं, पास आता है कि दीन होना। True love is humble, no proud, no boastful, तो सच्चा प्रेम होता है घमंडी नहीं होता है, अपनी वाह नहीं करता है, and no hatred towards others. एक दूसरे को नफरत भी नहीं करता है, But love in patience, love in kind, and no envy, and then also, enjoy peaceful. और शांति से रहना पसंद करता है। See, humble people. Humble means not like humble, okay? Humble is not that. दीन क्या होता है? ठीक है, मैंडल चले, ठीक है, आप humble, ठीक है मम्मी, ऐसा बोला वो humble नहीं। आप मम्मी ना जाके ना झूठ बोलो, तो आप झूठ बोल के ना ऐसा नहीं। Humble मतलब अलग है। So humble means humble in the right place. तो दीन सही जगह पे होने को दीन कहते हैं। कभी-कभी ना हम humble करना है, गलत तरह पे humble होते हैं। हम humble दिखाने हैं ना, हम लोग को गलत बताएंगे, गलत समझाएंगे, चर्च मत जाओ और बाइबल मत पढ़, हम humble दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं आज के दिन से बाइबल नहीं पढ़ेंगे। This is not a humble. तो ये दीन होना नहीं है। ऐसा होगा तो humble नहीं, हम खराना नहीं, हम करना है सच्चाई का। Humble talk about in the truth, दीन होना मतलब सच्चाई में दीन होना, not in the wrong way. गलत में दीन होना नहीं। That's what the Bible says. बाइबल कहती है, Be humble like a dog, be wise like a snake. तो एक सांप के समान चालाक होना है, लेकिन हमें बहुत ना दीन भी होना है। Say kabutar. Bible talk about dog. Kabutar is, you see, not like other birds. जो कबूतर होता है बाकी पक्षी जैसा नहीं होता। He can live peacefully आराम से, लेकिन no, वो गंदा। घर में रहते तो ना, मेरे घर में सारे क्या ग्रास लेके आते हैं, और मैं ऐसा से आते हैं तो ना किचन में सारे क्या गिरता है। So and then toilet सारे से गिरते हैं। So now what is that? Bible says that be humble like a kabutar, तो बाइबल कहती है कबूतर के समान आप be नम्र हो, wise like a snake. और एक सांप के समान चालाक See, हो। snake is very wise. जो सांप होता है वो बुद्धिमान होता है। When you see snake, जब आप एक सांप को देखते हैं, अचानक से आपको सीन के और अचानक से निकलते हैं। और snake ऐसे हुए है ना, snake is very fast and very wise. तो सांप बहुत फास्ट होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, और अक्सर से दिख के आपको सुन करेंगे। So he will not just come and he will not like that. He will watch over you. वो आपको ध्यान से देखता है, Then he will just try to where he can catch you. और फिर देखते हैं कहाँ मैं इसको अटैक करूँ। So snake को आप snake देखा है? Snake को क्या होता है? हम लोग ऐसे snake आते ना, वो नहीं होता। वो खड़ा कि कहाँ आपको चुप करना है, वो मालूम होते हैं, वो तैयारी करते हैं। तो उसके बाद इंसान को ऐसा होता है। Then what we do? Put poison. और फिर जहर घुसा देता है। That is the how the snake is. And then also snake know that this is a danger. तो सांप को पता है कि ये जगह खतरनाक जगह है। Then अचानक से फिर क्या होता है? आपका आई से ऐसा चाहिए। So he is not the another same animal. He is completely different. तो बाकी जानवरों की तरह नहीं है, बहुत अलग जानवर है। So there is a Bible is talking about. तो बाइबल क्या बता रही है? Be wise like a snake. तो एक सांप की तरह बुद्धिमान हो। See, you should have a wise आपको बुद्धिमान होना है that this place is danger. कि इस जगह पे खतरा है, You must go. तो निकलना पड़ेगा। Don't waste your time. समय ना खराब करें। And you must be wise. तो बुद्धिमान होना है। Today many people having knowledge. आज बहुत सारे लोगों को बुद्धि होती है, They have knowledge. ज्ञान होता है, They have degree. डिग्री भी होती है, But they are not wise. पर बुद्धिमान नहीं होते। That is a wise is very very important. तो बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। You begin a wisdom. अगर हमें बुद्धि नहीं, Ask God wisdom. तो प्रभु से बुद्धि मांगे। Wisdom is something that you can't able to train. तो बुद्धि की चीज़ है कि आप सामने को ट्रेन नहीं कर सकते। Wisdom cannot give education. वो पढ़ाई लिखाई नहीं दे सकता। Wisdom प्रभु से आते हैं। तो
है मेरा सिंपल विजडम में आप प्लास्टिक लेंगे तो आपको सिखाना नहीं है कैसे करना है तो प्लास्टिक को आपको बुद्धि से विजडम से सारी चीज कर सकता है फूल बनाता है कुछ चीज बनाता है प्लास्टिक से चेयर बनाता है बहुत चीज है कि सिखाना जरूरी नहीं है लेकिन दिमाग से आता है so sometimes people have things but no wisdom तो कई बार के लोगों में चीजें तो होती है लेकिन बुद्धि नहीं होती they have a knowledge ज्ञान तो होता they है have a water पानी भी होता है but they don't know what to use this water पर उन्हें नहीं पता पानी को इस्तेमाल कैसे this करना है। water can do everything ये पानी सब कुछ कर सकता है this water God has given प्रभु ने दिया we है need a wisdom आपको बुद्धि चाहिए God will not say take bath प्रभु ने कहा कि God will not say cook food प्रभु ने बोला God will not say drink या तो पी लो you have the wisdom आपने बुद्धि होनी in चाहिए this water इस पानी you से can clean house आप घर भी साफ you कर can सकते हैं wash clothes आप कपड़े you can धो cook food खाने बना you सकते can हैं, drink पानी पी you सकते can हैं take bath और नहा भी सकते हैं see one thing God giving तो एक चीज जो you प्रभु can ने do so many things इससे बहुत काम that is coming from your womb as a simple example ये साधारण सा उदाहरण है same thing इस तरीके से study पढ़ाई Bible बाइबल प्रभु का law प्रभु की वाचा प्रभु का नियम पास्टर से अलावा आपको बहुत चीज से करना है प्रीचिंग से अलावा बहुत चीज से करना है बाइबल पढ़ने के अलावा बाइबल पढ़ के बहुत चीज से करना है that is the wisdom talk about इसे बुद्धि कहा गया है but if you didn't have पर अगर आपके पास नहीं है then the person become a Buddha become Buddha what is the Buddha Buddha go to the Himalaya mountain sit so you know so the no active and that is God doesn't want to be a Buddha and you know just परमेश्वर idol नहीं चाहते कि हम आलसी हो जाए लेकिन हम एक्टिव हो God didn't create you to be an idol प्रभु ने हमें मूर्ति की तरह बैठने के लिए नहीं बनाया God created to be action प्रभु चाहते हैं हम एक्टिव रहे और काम करें discipline अनुशासित रहे live a wonderful एक life अच्छा जीवन जिए Amen आमीन I'm speaking to everyone वास्तव में हर किसी से बात कर रहे हैं so now love means humble तो प्रेम क्या है दीनता if you we should not be very proud तो हमें घमंडी नहीं होना है we are proud that oh I have a vision हम कहते हैं अरे मैं दर्शन देख we सकती are हूँ proud that oh I am a BA अरे मैं तो बीए कर रही Amen हूँ एमए we कर are रही हूँ proud that I have a building अरे मेरी बिल्डिंग बड़ी we है are proud that oh I have a wonderful church हाँ घमंड नहीं करना चर्च बहुत अच्छा we है are proud that oh I have a wonderful pastor घमंड होता है कि यार पास्टर that is अच्छा है short and beautiful pastor and not like that God does it so we are so many ways we are proud तो हमें बहुत सी जगहों पे घमंड आता है God said don't proud प्रभु कहते हैं घमंड मत करो that is not love तो ये प्रेम नहीं है so in love तो इस प्रेम में no proud घमंड नहीं होता whatever you have जो भी आपके पास होता है glorify God आप उससे प्रभु की महिमा करते हैं humble दीन होते हैं listen today many people who are very wise people इसलिए okay आज जो लोग बहुत बुद्धिमान गिने जाते हैं you will see they will be up to that like they will be no even the small thing even the things that they supposed not to do you will see they are doing आप देखिए वो जो काम वो नहीं भी कर सकते और फिर भी कोशिश करते हैं हर चीज में अप टू डेट रहते हैं very wise people जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं very nice to associate उनसे बात करना बहुत अच्छा होता है very nice to work together उनसे बात करना अच्छा they are होता है humble दीन होते हैं kind दयालु but होते when हैं you see their life लेकिन उनका जीवन आप देखते they हैं have so many money बहुत so पैसा many है success बहुत सफलता so है many certificates बहुत so सर्टिफिकेट many है position बहुत पोजीशन है but they never boast पर themselves घमंड नहीं होता they never boast घमंड नहीं but है today many people you know like what is that middle class people पर कई लोग ऐसे मिडिल क्लास लोग होते हैं high भी नहीं low भी नहीं but they are proud पर उन्हें घमंड होता है so that is the Bible talk about that if you have love means no proud तो बाइबल कहती है आप में प्रेम है प्रेम मतलब आप में घमंड नहीं है and we should not be proud that everything that we have तो हर जो चीज हमारे पास है उसको घमंड हमें नहीं होना चाहिए but everything is not belongs to you पर हर एक चीज जो हमारे पास है वो हमारी नहीं है it belongs to God वो परमेश्वर की है you what you have is तो belongs जो to God आज आपके पास है वो परमेश्वर that's का why you है have nothing to be proud तो घमंड होने की कोई जरूरत नहीं your success belongs to आपकी God सफलता प्रभु की your वजह power से belongs to आपका God सामर्थ प्रभु की your वजह authority से belongs to आपका God अधिकार प्रभु की your वजह से greatness belongs to आपकी God महानता प्रभु की your वजह से anointing belongs to God अभिषेक प्रभु I am become a pastor belongs to God पास्टर है तो प्रभु I should not proud I'm a ऐसा pastor घमंड नहीं होना चाहिए no it is not me ये हम नहीं है I am not पास्टर कह रही it मैं is तो God ये प्रभु so I should not proud about this thing तो घमंड नहीं करना है वेदी I का should not proud that oh I heal people तो पास्टर चकाई देते थे घमंड I नहीं करना deliver people ये छुटकारा and I need to have a good sin no नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए but I do like to see this thing wherever I go
I want to be like nobody. So that is a humble talk about that. No proud. Whatever you have, no boastful. तो दीनता मतलब कि आपके पास जो कुछ भी हो आप उसका घमंड नहीं करते। But today, that is the love talk about. वो है प्रेम। This is love. ये है प्रेम। So love means kindness, तो प्रेम humble, क्या है प्रेम? self-control, patient. धीरज। And but if we are boastful, लेकिन अगर घमंड करते हैं, मेरा बेटा तो इतना इंसान है, मेरा बेटी तो इतना काम है, एयर होस्टेस है, पायलट है, जीसी है, और मेरा परिवार तो ना प्राइम मिनिस्टर है, मेरा परिवार तो एमपी है। आप मालूम है मैं कौन हूँ? बहुत एमएलए है मेरे घर पे, और बहुत क्या था? बहुत लोग ऐसा होते ना, they didn't have nothing, but other success they are proud. और दूसरों की सफलता को घमंड। But the success person is humble. लेकिन इसमें सफलता है वो दीन है। But other people पर जो मेरा सफलता नहीं है वो ज्यादा घमंडी है। holding that person. मालूम है मेरे घर में ना मेरा दादाजी, मेरा पापाजी और एमएलए था पहले, प्राइम मिनिस्टर था, और क्या था, चीफ मिनिस्टर था, और राजा था। तो उस चीज में humble करके ना दूसरा को नीचे गिराता है। और उस चीज में हम ना, अब तो कुछ नहीं थे आपका लाइफ में, बहुत नहीं थे, बहुत चीज नहीं थे, लेकिन हम बोस्टफुल करके दूसरा सक्सेस में, दूसरा अमीर में, दूसरा ग्रेटनेस में हम बोस्टफुल होते हैं। That is not love. ये प्रेम नहीं है। Love means humble. प्रेम धीरजवंत है। That is why the Bible says true love means इसलिए बाइबल में कहता है सच्चा प्रेम humble yourself. वो दीन होता है। Because every good things come from God. क्योंकि हर एक अच्छी भली वस्तु परमेश्वर Only की ओर God से is the होती one है। who gives. क्योंकि परमेश्वर ही हमें देता है। Another thing, और एक और चीज, love means respect one another. प्रेम एक दूसरे की इज्जत करना भी है। Respect. इज्जत, Everyone love respect. हर किसी को इज्जत अच्छी लगती है। But today what is that? लेकिन आज क्या होता है? मैं बड़ा हो, मैं elder हो, आप respect करना चाहिए. So you don't want to give other person पर respect, हम दूसरों को इज्जत देना नहीं चाहते, but you want respect. पर हम इज्जत लेना चाहते हैं। You don't want to give other person. We want only me. मेरा को दे दो. हम देना का तो जरूरी है, देना का तो मन नहीं है, रेस्पेक्ट देना का मन नहीं है, लेकिन हमको रेस्पेक्ट चाहिए. ये काम नहीं चलेगा. हम रेस्पेक्ट देंगे, दूसरा भी रेस्पेक्ट देंगे. हम दूसरा को पियर देंगे, तो दूसरा भी पियर देंगे. हम दूसरा को कंप्लेन करेंगे, भी दूसरा भी आपको कंप्लेन करेंगे. हम दूसरा को जेलेसी करेंगे, तो पक्का आप मालूम होना चाहिए आप कभी जेलेसी हो जाएंगे. हम कुछ हम लोग का लाइफ भी देते हैं ना, हम लोग सोच लो, हम लोग के पास भी दूसरा लोग ऐसे होता है. सो हम लोग का लाइफ में ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है. So that is why that is all about love. तो ये है सब कुछ प्रेम के बारे में। So today many people looking for respect and love, आज बहुत सारे लोग इज्जत और प्रेम ढूंढ रहे हैं। honoring. इज्जत So ढूंढ रहे हैं। love means respect. तो प्रेम क्या है? इज्जत। Respect one another, एक दूसरे की इज्जत करना। whether big or small, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, whether poor or rich. अमीर हो कि गरीब हो, We respect the rich people. हम अमीरों की तो इज्जत कर लेते हैं। That is why in the Corinthian church there is a तो problem. कुरिन्थियों की कलीसिया में एक परेशानी थी। Paul is written. पौलुस ने लिखा, When the people coming to congregations and everywhere, जब लोग झुंड में आते थे, the people putting gold and तो silver, जो लोग सोना चांदी पहनकर आते थे, then they giving a good seat. उन्हें आगे आगे बिठाया जाता था। But when the person is not लेकिन जो good व्यक्ति clothes, फटे फूटे कपड़े पहन के जब आता था, then they didn't care. उसे कहते They जमीन पे didn't बैठ जाओ, respect. साइड पे They जाओ। didn't look. और ये इज्जत नहीं होती थी। And then what is that? Then Paul said that is तो not. पौलुस ने कहा ये सही नहीं है। The gods love one another, एक दूसरे से प्रेम रखो, kind one another. दया दिखाओ। So today many people when they have a good building, आज बहुत सारे लोगों की जो अच्छी इमारतें होती they हैं, have a position, अच्छी पोजीशन they have होती a है, good job. अच्छी नौकरी होती है, Then the person who didn't have nothing, तो जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं they होता will है, coming together. वो साथ में आते हैं। Then what do you do? What we do? तो हम क्या करते We हैं? respect the person who have position. जिसके पास ज्यादा पोजीशन है, हम उसको ज्यादा इज्जत देते हैं। But the person who is coming along with that, लेकिन व्यक्ति जो हल्का है, पोजीशन इतनी अच्छी for नहीं है, example, bodyguard आया, और मिनिस्टर आया, तो हम बॉडीगार्ड को नहीं देखते, मिनिस्टर को सारे दान सारे दिल करते हैं और रेस्पेक्ट देते हैं. Bible says that is not love. तो बाइबल कहती है प्रेम नहीं है। Love means respect equal. बाइबल कहती है कि एक जैसा ही प्रेम रखना है। Whether the person is poor, चाहे व्यक्ति गरीब हो, rich, अमीर हो, black, काला हो, white, गोरा हो, green, गांव से हो, सिटी से हो, कोई जगह भी हो,
Love में in love there is no boundary. तो प्रेम के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए. Love there is no boundary. प्रेम में कोई भेदभाव नहीं. When you love somebody, जब किसी प्रेम करते हैं no boundary. तो No कोई सीमा नहीं Manipur, no रहती. Nagaland, no Bihar, no Jharkhand, anywhere. Love bring together. क्योंकि प्रेम सबको साथ में ले आता है. So love is no boundary at all. तो प्रेम के अंदर कोई भी सीमा नहीं That's है. why God love us. इसलिए प्रभु हमसे That's why प्रेम in God there is no boundary. करते हैं. तो प्रभु में इसलिए कोई सीमा नहीं है. हम तो प्यार तो करते हैं, लेकिन क्या है? हम लोग का प्यार है, ये तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है, ये तो क्रिश्चियन है. हम बाउंड्री बनाता है. That is not love. तो ये प्रेम नहीं है. Then what is that? When you in your home also. आपके घर में भी मेरा ससुर का घर ना रिच है. Do you respect more that family? तो आप कोई व्यक्ति जो अमीर होता है उसके साथ इज्जत करते हैं. So वो लोग आ रहे हैं तो हम कितना तैयारी करके करते हैं. लेकिन सीधा वाला है, सिंपल वाला है तो ना हम कुछ नहीं करता. Like you know, ऐसा होता है. So that is not love. तो ये प्रेम नहीं है. So love is respect each one of them प्रेम है equally. इज्जत करना हर किसी की एक समान. Whether big or small, चाहे बड़ा हो whether छोटा, failure or success, चाहे सफल है whether असफल, prime minister or चाहे president, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, whether pastor or no चाहे pastor, पास्टर हो कि मेंबर हो, whether a city or village, शहर हो कि गांव हो, whether you know a slum or anywhere. या कोई व्यक्ति बड़ी इमारत में रहता है या कोई भी छोटे घर में God रहता है. say प्रभु कहता love है, means respect one तो another, प्रेम मतलब एक दूसरे की इज्जत करना, equally treat one एक another. जैसा स्वभाव करना. Today, because of the people didn't have love, आज बहुतों को में प्रेम जो नहीं they है, have so many boundaries. इसलिए उन्होंने भेदभाव I will करते do हैं. for this person, मैं इसके I लिए will not करूंगी, do for this इसके लिए person. नहीं करूंगी, I will give for this person, इसको दूंगी, I will not give for this इसको person. दूंगी, I will help this person, इसकी मदद करूंगी, I will not help this इसको person. नहीं करूंगी, I will pray for this person, इसके लिए प्रार्थना I will not करूंगी, pray for this इसके लिए person. नहीं करूंगी. I will do this work, I will not do this work. So we have so many boundaries. तो हम अलग-अलग सीमा बना के रखते हैं. That is why, who is the problem? तो परेशानी किसको आती है? We ourselves हम ही खुद परेशानी बनाते हैं, create problem. बनाते हैं. God said love. परमेश्वर कहता है प्रेम करो Remove all this. और सब गलत चीजों को All निकाल the दो. boundary. सारी Because बातों in को love there is no क्योंकि boundary. प्रेम में कोई भी सीमा नहीं. In love there is no boundary. प्रेम में कोई सीमा नहीं. In love there is no limitation. कोई लिमिटेशन नहीं. But if you have boundary, पर अगर आपकी बाउंड्री है that is not love. तो इसका मतलब प्रेम नहीं है. You are grudges. आपने शिकायतें रखी हैं. And another thing, love means selfless. True love means selfless. No, you are not thinking for yourself. तो सच्चा प्रेम मतलब अपना नहीं सोचते. The way you think for जिस yourself, तरह से अपने सोचते हैं, you think for others. आप ऐसे दूसरों के लिए सोचते हैं. The way you love yourself, जब जैसे अपने आप से प्रेम You करते love हैं, others. वैसे दूसरों से प्रेम करते हैं. that means love. इसका मतलब ये प्रेम. But if you are selfish, लेकिन अगर आप सेल्फिश है, मैं करना है, मैं काम करना है, मैं खुद से करना है, मैं तो नहीं करना है, मैं तो ऐसा करना है ना, that means no love. इसका मतलब प्रेम नहीं So है. true love is always thoughtful, तो सच्चा प्रेम हमेशा सोचता है, concerned, ध्यान रखता है, concerned about the welfare of others. दूसरों का ख्याल रखता है, Second one, concerned about the welfare of others. दूसरों की उन्नति का ध्यान रखता है. You are not concerned about yourself. अपना अपना नहीं सोचते You are आप. concerned about what the person, आप दूसरों का भी सोचते हो. their welfare, their उनकी work. भलाई के सफलता के बारे में. So that is the love of God. इसे प्रेम कहा गया है. But if you didn't have these things, पर अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, then let us change this year. तो इन चीजों को बदलते इस साल. So in love is not, you are concerned about the welfare of others, no selfish, no greedy. तो प्रेम वो है जब आप दूसरों की उन्नति के बारे में सोचते I हैं. will finish on. Love means calm. Love means righteous. Love means honest. Love means protect. Love means trusting. तो प्रेम क्या है? प्रेम ईमानदारी है, प्रेम है भरोसा रखना, Calm. Very calm and बहुत quiet. शांति से. See, बोला love में देखो, like what is that? Human love also. When you love somebody, जब आप किसी इंसान से प्रेम करते हैं, रास नहीं होता, बहुत काम होता है, बहुत आराम से होता है, शांत। शांति होती है. But when you didn't love पर somebody, आप किसी से प्रेम नहीं करते, full of grudges, तो हमें शिकायतें होती हैं, anger, complaint, गुस्सा होता है, and then also you don't want to see that person. आपको उसका देखने का मन नहीं करता, So many grudges. तो बहुत सारे घमंड होता But है. when you love somebody, लेकिन जब आप प्रेम करते हैं, you will very calm, तो आप बहुत धीरज होते हैं. understanding. आप समझदार You हो will जाते be हैं. make the person organized. आप सामने वाले व्यक्ति को ऑर्गेनाइज करते हैं. But हम क्या होते हैं ना? What is that? If there is no love, अगर प्रेम नहीं है, you see no calm at all. आप नहीं कुछ भी काम ही नहीं है, Calm means cool. मतलब वो शांति ही नहीं है, See, calm I'm talking about cool, okay? शांति नहीं है. So love means calm, cool. तो प्रेम क्या है? प्रेम में शांति है.
So and then what is that? In Shanti is peace, okay? But in Hindi language there is no there. Calm means like very calm and quiet. मतलब धीरजवंत एकदम, So that is love talk about. इसे प्रेम कहा गया है। So today many a time we are not calm and quiet. आज बहुत सारी बार हम शांति में नहीं होते हैं, We are rushing. हम जल्दी में होते हैं। We can't able to have patience with the person. We can't able to have kindness the person. We can't able to have peace of the person. शांति नहीं दे पाते। Well, that person is going, well, and that person is talking something irritating. कोई व्यक्ति कुछ भी बात करता We है, are not calm. We are हम not quiet. परेशान हो जाते हैं। And we want to pa, done. And that is not love. ये प्रेम नहीं है। In love, प्रेम में you will understand the person. आप सामने वाले को समझते You हैं, will kind to the person. आप दयावंत You हो will जाते हैं, respect to the आप person. इज्जत करते हैं, You will be understanding to the आप person. माफ कर पाते हैं, समझ पाते हैं। That is the true love of यह है God. सच्चा प्रेम। And then in true love, और सच्चे प्रेम में truth is there. सच्चाई है। When you love God, जहाँ परमेश्वर से प्रेम करते हो no lie. तो झूठ नहीं है। God hate lie. परमेश्वर को झूठ से नफरत है। Today, आज everyone, हर एक कोई व्यक्ति, whether Christian or not, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे ना हो, we open door for Satan. हम शैतान के लिए रास्ते खोलते हैं। Satan is the father of liars. शैतान तो झूठ का पिता है। So if you lie, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, don't think that you are the child of God. ये ना सोचे कि आप प्रभु की संतान हैं। You are the child of Satan. आप शैतान की संतान हैं। Because in the book of John, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना में, Satan is the father of ये liars. शैतान झूठ का पिता है। So हम झूठ बोलते हैं तो हम प्रभु का बच्चा नहीं है, शैतान का बच्चा है। आंख गली से झूठ निकालो. So in love there is no lie. तो प्रेम में झूठ नहीं है। But in your love, लेकिन आपके प्रेम में if you started talking lie, अगर आपने झूठ बात करनी शुरू कर दी, that means तो इसका मतलब है believe that विश्वास करें that relationship कि वो रिश्ता will no longer. इतना लंबा नहीं खींचने वाला। Only few moments. थोड़ा समय चलेगा फिर बंद हो जाए। When in your love somebody, अगर आप किसी से प्रेम when करते you हैं, love your husband and अगर wife, आप पति पत्नी से Brothers प्रेम and करते हैं, sisters, भाई बहन से प्रेम करते हैं, people, when you लोग started lie, जब आपने अगर रिश्ते में झूठ आना शुरू that किया, relationship तो वो रिश्ता is going to withdraw. बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। Because they come to know that you are speaking lie. क्योंकि वो व्यक्ति जान जाएगा एक दिन कि आप झूठ बोलते हैं, That time the relationship और breaks. फिर धीरे धीरे वो रिश्ता टूट जाएगा। Today many people lie one another. आज बहुत से लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, Husband and wife lie. पति पत्नी में झूठ So बोलते when हैं, they come to know each और जब other, पता चलता है कि तो झूठ बोला, then what they do? फिर क्या होता है? Trust gone. विश्वास टूट गया। Then they look for other people. फिर वो सोचता है अरे They भरोसा look for another wife. और दूसरा They look for another husband. They look for another church. वो दूसरा कलीसिया ढूंढते When हैं। they lie to church, जब वो चर्च में झूठ बोलते हैं, that moment उस समय they will enjoy. उनको आनंद But आएगा, later, और बाद में that relationship वो will रिश्ता, Many people talk about me lying. बहुत बार पास्टर के बारे में लोग कहते हैं, They are no longer with me. वो बहुत से लोग पास्टर के साथ आज नहीं है, I didn't say go, पास्टर ने भगाया नहीं, but lie cannot stay together. पर झूठ साथ नहीं रह पाया। One there's some few moments कुछ समय के लिए when you lie. जब आप झूठ बोलते अरे हैं, नहीं तो ऐसे उस टाइम में तो खुशी तो होंगे, सुन लेंगे वो इंसान, लेकिन लाई को पकड़ लेंगे, वो दिन से आपका ट्रस्ट हो, आपका इतना विश्वास हो, तो वो नेक्स्ट टाइम में कितना बात करेंगे, कितना खुशी करेंगे, हम लोग अंदर नहीं जाता। तो ऐसे में रिलेशनशिप हो। So पेयर में प्रभुता लव मीन्स व्हाट? नो लाई। तो प्रेम क्या है? मतलब उसमें झूठ नहीं वह है। आप सच्चाई बताओ, उस टाइम में थोड़ा पेनफुल है, उस टाइम में थोड़ा दुख है, लेकिन आप सच्चाई बात करेंगे, सच्चाई में प्रभु को प्यार करेंगे, सच्चाई में सच्चाई बात करते हैं, तो उस टाइम में तो दुखी होंगे, लेकिन उस सच्चाई बात करना इंसान लंबा कर रिलेशनशिप में, सारी चीज में they will stand forever. वो हमेशा खड़े रहेंगे। But when you are lying, पर जब झूठ बोलते हैं, you will see what's over your life. That relationship will कि go वो रिश्ता बहुत जल्दी खत्म हो one day. एक दिन। So don't lie one another. तो एक दूसरे से झूठ ना बोले, Don't lie to your family. अपने परिवार में झूठ ना Don't बोले, lie to your mothers. अपनी मम्मी से झूठ Don't ना lie बोले, to your pastor. अपने पास्टर से झूठ ना बोले, Don't lie to your brother अपने sister. भाई बहन से झूठ ना Don't बोले, lie to your job. अपने नौकरी में झूठ ना बोले। One day when they come to know you, एक दिन जब बॉस को पता लग they गया, will kick you out. बाहर निकाल देंगे। One day you are serving some people. एक दिन आप किसी की सेवा कर रहे When हो, you lie, पर आपने झूठ बोल they दिया, will come एक kick व्यक्ति out. को बाहर निकाल Don't देंगे। lie about church. चर्च के बारे में झूठ ना बोले। When you lie, जब झूठ बोलते you हो, will very difficult to grow. आपको पढ़ना मुश्किल हो जाता है, You will very difficult to grow. बहुत मुश्किल होता है। Slowly, धीरे धीरे you will run away. आप निकल जाते हैं। It is not about church. इन चर्च के बारे में It is all about your life. ये आपके जीवन के बारे में। God will not restore. परमेश्वर तुम्हारा नया नहीं करता। So when you speak the truth, that time when you speaking truth is very coarse. तो इसलिए जब आप सच्चाई बोलते हैं, उस
सच्चाई बोलने में उस समय तो बहुत मुश्किल होती है, Very close. बहुत ज्यादा मुश्किल। झूठ बोलने में बहुत इजी है, हाँ ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। सच्चाई बोलने में बहुत है और निकलने में बहुत दुखी होते हैं, लेकिन बाद में आनंद होते हैं। झूठ बोलने में इतना आराम से निकलते हैं, बाद में क्या होते हैं? दुखी होते हैं। So remember, तो याद रखें, God said, "Do not be lying." तो प्रभु कहता है झूठ मत बोलो, So don't lie in the church. तो झूठ ना बोलो, Don't lie, brother and sister. अपने बहनों में ना बोलो, Don't gossip. चुगलियां ना करें। These things are actions so that you are not loving. ये चीजें जब करते हैं आपको दिखता है कि आप प्रभु से प्रेम नहीं कर रहे। God is speaking to us today प्रभु for आज yourself. सबसे बात कर रहा है। I am not talking for yourself. बात से सिर्फ आपको ही I नहीं am कह talking रही, for अपने आप को भी कह रही हूँ। If you really want to see अगर आप God, सच्चे परमेश्वर को देखना चाहते हैं, if you really want to go to heaven, अगर आप सच में स्वर्ग जाना चाहते today हैं, many people they are if I speak like that then they will feel bad. आज बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं यार मैंने बोल दिया तो बुरा लग जाएगा। No, नहीं, I need to speak. नहीं बोलना है। Amen. So that this is the real mess, real scripture. और ये है एक सही एक वचन। So in the love means no righteousness, तो प्रेम क्या है? धार्मिकता, honest, शांति, and then ईमानदारी also trusting. और भरोसा। But if you didn't have these things, लेकिन अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है, there is no love. तो प्रेम नहीं है। That is the Bible says yesterday, Friday we read, we are just like a sound, summing sounds. तो क्या है? Come, अंदर नहीं जाता. हम सिर्फ एक बैल की तरह है जो बज रही है टन 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 तो बज रही है लेकिन अंदर नहीं। That's the God said all these things if you didn't have that, इसलिए प्रभु कहते हैं सब अगर नहीं है तुम्हारे पास, we are nothing. तो हम कुछ भी नहीं। We think that we are so righteous. हमें लगता है बहुत We धर्मी है, think that we are so fasting. हम लगता है बहुत We उपवास think कर that रहे we हैं, are so hallelujah. हम बोलते बहुत हालेलुया में चिल्लाते लेकिन हैं, प्रभु तो दिख रहा है। आप तो बिल्कुल कुछ नहीं है, प्यार नहीं है, शांति नहीं है, झूठ बोलते हैं, क्या है, एंग्री होते हैं, जलन होते हैं, कमिटिंग अडल्ट्री होते हैं, सारी चीज होते हैं। प्रभु तो अंदर से दिखता है, इंसान तो बाहर दिखता है। तो अंदर से हम काम करते हैं ना, बाहर भी निकलते हैं। से हम अंदर से गुस्सा होते हैं, बाहर निकलते हैं, अंदर से प्यार करते हैं, बाहर निकलते हैं, अंदर से काइंडनेस होता है, बाहर निकलते हैं। So you will see the action one day. तो एक दिन आप देखेंगे कि अभी परिणाम क्या So होंगे। these are the love talk about. तो ये है प्रेम। Love means प्रेम है binding one another, एक दूसरे को बांध के रखना, covering one another, एक दूसरे के पापों को ढांपना, forgive one another, एक दूसरे को माफ करना, not bringing out the उनको other दोबारा sin. पकड़ पकड़ के बाहर नहीं But निकालना। what we do is that पर हम करते क्या है? we bring out other person. हम दूसरे के पापों को बाहर निकालते हैं। कैसा होता है, हम इंसान है ना, थोड़ा सा इधर कहता है कम होते हैं, लेकिन ना बात करके उनको इतना खून बनाता है। देन खून बनाते हैं ना, और हीलिंग करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि if you give to what is that monkey, अगर monkey ऐसा monkey है, थोड़ा चीज होता है ना, करते भागते हैं थोड़ा चीज में, so then difficult to bring together. दोबारा से वापस करना बहुत मुश्किल होता है। So we also like that. तो हम भी ऐसे ही होते हैं। So गलती से हम बात करते ना, छोटा से बड़ा फैल होता है। उसका बात क्या होता है, वो क्लोज करने में बहुत मुश्किल होता है। So love, if you will love one another, forgive one तो another. अगर आप दूसरे प्रेम करते हैं, दूसरे को माफ भी करना सीखें, Don't bring out their sin. एक दूसरे के पापों को बाहर ना निकालें। See, God love us. परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। He never tell you, oh रोहित आपका पाप ऐसा हो गया, आप ऐसा काम करते हैं, ये करते हैं, प्रभु ऐसा नहीं करता। हम लोग को पाप को कवर करते हैं। That is love talk about. तो ये है प्रेम। So when you love people, तो जब प्रेम करते हैं लोगों से, don't bring out evil, तो उनकी बुराइयों को ना पकड़े, bring out good things. उनकी अच्छाइयों को पकड़े। Then you will see you over the sins. तो इसका मतलब आपने उनके पापों को ढांप दिया। Because of the goodness, उनकी भलाई की वजह से, even the person who is guilty. जो व्यक्ति को बुरा भी लग रहा है, मैं तो इतना तक तो ना, मैं तो काट दिया, लेकिन ये इंसान तो ना इतना मेरे को अच्छा से बोलते हैं, मेरा को ना पाप को नहीं निकलता, मेरा को सब लोग को ऐसा मेरा बुराई करते हैं। तो इंसान आपके सामने बात करेंगे और अंदर से आते हैं, और बाद में क्या होता है, आपको रेस्पेक्ट देंगे, आपको बात को मानेंगे। लेकिन हम फैलाते हैं, हम निकलते हैं, तो आप रेस्पेक्ट नहीं मिलेंगे, आपसे दूर जाएंगे और वापस आना में मुश्किल होगा। So now love means that तो लव क्या है? bind one another, एक दूसरे को forgive बांधना, one another, माफ करना, live in unity, साथ में एक walk in रहना, unity, साथ में चलना, do the work in प्रभु की unity, इच्छा पूरी stay करना, in unity. सब के साथ में रहना, That is the एकता में, love talk about. इसे प्रेम कहा गया है। But wherever you go, पर जहाँ भी आप जाए, खाते हैं, पीते हैं, लड़ाई करते हैं, रोलाता है, that is not love. तो ये प्रेम नहीं
cry, अब कोई व्यक्ति रोता है, you make that person. आप उसको चुप करवाएं। If somebody complains, कोई इंसान you शिकायत कर make रहा है, that person तब cool उस down. व्यक्ति को बैठ के If आराम somebody करो। grudges, कोई इंसान कुड़कुड़ा रहा है, बुराई है, जलन है, you remove that person. तो वो उन चीजों को निकालो उनके जीवन से। Or if the person is your enemy, कोई इंसान का दुश्मन है, forgive that उसे person. माफ कर दे। But if you grudges लेकिन inside, अगर आप इन चीजों को अपने मनों में पकड़ के बैठ गए, there is no love. तो ये प्रेम नहीं है। This is we have already read in what is that? First Corinthians chapter 13. तो पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में All these things if you have, ये सारी चीजें आपके पास होती you है, are nothing. आप कुछ भी नहीं। Amen. I will going to finish. So love means that be confident and focus in the till the ends. और प्रेम क्या है? अंत तक विश्वास योग्य रहना। Be disciplined yourself. अपने को अनुशासित Be करना। focus what you really want. फोकस to do. करना कि आप क्या करना चाहते हैं। Don't be focus people life. तो लोगों के जीवन को ना देखें। We so much focus the society, entertainment, Facebook, WhatsApp, all these things. Yes, sometimes also focusing. So all these things, they will not लेना देना हमको कुछ पास नहीं होगा, लेकिन time wasted होता है. So now, love means that you will not focus all kinds of evil. तो प्रेम क्या है? मतलब बुराइयों में ध्यान नहीं लगाते। And then also in love, और प्रेम में there will be a confidence. एक हियाव होता है। You will be confident. आप में हियाव होता है। See, when you love somebody, जब आप किसी से प्रेम करते you हैं, have confidence to say. आपके अंदर कॉन्फिडेंस You होता have है। confidence to speak. आप बात कर सकते हैं। You have confidence. So when you love God, जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, we have confidence to stand in the pulpit. आपको पुलपिट के पास खड़े होने का साहस You have होता है। confidence to tell the truth आप about लोगों को people, सुसमाचार बता सकते हो। about gospel. प्रभु के सुसमाचार But क्या when है? we didn't love God, पर अगर परमेश्वर का प्रेम ही नहीं है, डर लगता है. नहीं इसे बात करेगा तो मेरे को मारेगा. ऐसे बात करेगा तो मेरा घर से निकलेगा. ऐसे बात करेगा तो मेरा चर्च से निकलेगा. ऐसे बात करेगा तो मेरा परिवार मेरे को मारेगा. But in love there is no fear. लेकिन प्रेम में कोई डर नहीं है। Even the human love, इंसानों के प्रेम में भी boyfriend girlfriend love, that's why people die for the another person. आप देखें जो लोग बॉयफ्रेंड करते हैं, Because there is no fear, but there is no love. वो प्रेम नहीं है बॉयफ्रेंड That गर्लफ्रेंड is the evil love, वो गलत तरह का प्रेम होता है giving their life क्योंकि अपना जीवन देते हैं before his time. अपने समय से पहले You just give yourself your life. अपना जीवन दे देते हैं That is the they will go to hell. वो नरक ही जाएंगे So in love तो प्रेम में there is no fear. कोई डर नहीं In होता love प्रेम में there is no sin. कोई पाप नहीं होता So what is love then? तो प्रेम क्या है We फिर have already listened. हमने पढ़ लिया है Love meaning. कि प्रेम क्या है I will repeat again. Then I'll close. Love means प्रेम क्या है patience, धीरज kindness, दया humble, नम्र self-control, नियंत्रण respect, इज्जत no selfish, अपना अपना ना सोचना honesty, ईमानदारी righteous, धार्मिकता confident, सब Forgiving और others. एक दूसरे को माफ करना calm, धीरज रखना holiness, पवित्रताई में रहना truth, सच्चाई में righteous. धार्मिकता में All these things Bible talk about them. ये सब चीजों के बारे में बाइबल बताती है कि ये प्रेम है If you didn't have all these things, अगर आपके अंदर चीजें नहीं है then let us तो आइए हम प्रार्थना करें ask God to प्रभु से help बोले us. कि प्रभु हमें इन चीजों को दे And then also the Bible talk और about बाइबल क्या बता रही the है end. I will say और अंत में Bible says love your enemy. अपने पड़ोसी से प्रेम करें Let us turn to book of Matthew chapter 22, मत्ती 22 verse 40. Matthew chapter 22, verse 40. Okay, we leave that one. Luke chapter 6. Luke chapter 6, verse 27. Luke chapter 6, verse 27. Luke 6, 27. Love your enemy. Matthew 5:44 also. Pardon? Luke chapter 6, verse 27. Pretty good. Can you repeat the verse? Matthew chapter 6. Oh, you read that. Matthew 5:44. मत्ती 5 का 44 Matthew 5:44. मत्ती 5 का 44 परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो Amen. So here English Bible says, love your enemy, तो अपने दुश्मनों से प्रेम करो pray for them. प्रार्थना करो Bible didn't say that hate your enemy, बाइबल ये नहीं कहते तुम दुश्मनों से नफरत करो complain, शिकायत करो gossip, चुगलियां करो go and fight. जाके लड़ाइयां करो
Bible didn't say. बाइबल ये नहीं कहती। Love your enemy, अपने दुश्मनों से प्रेम pray करो, for them, उनके लिए प्रार्थना so करो, that they will change. ताकि वो बदल जाए। When you say something, जब आप कुछ कहते हैं they will not say it. तो वो नहीं But बदलते, when you talk to the Father, लेकिन जब पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं then your enemy, तब वो व्यक्ति that person become your no enemy. तो व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं रह जाता, That become your good friend. वो आपका अच्छा दोस्त हो जाता है। So instead of your enemy go and fight, तो आपका दुश्मन जाके अगर लड़ाई करे, गाली देते हैं, चौका देते हैं, और कंप्लेन होते हैं, कंप्लेन करते हैं, गॉसिप करते हैं, उनका वजह से तो प्रभु बताते हैं, ईयर का ना प्रभु में पाप ना हो, आपको दुश्मन हो, तो प्रभु ने चेंज करेंगे। हाँ, आप लड़ाई से चेंज नहीं करेंगे, आप बात से चेंज नहीं करेंगे, पैसा से चेंज नहीं करेंगे, सारी चीजें चेंज नहीं करेंगे, लेकिन बाइबल से लव, लेकिन बाइबल बताती है प्रेम। हाउ वी लव, हम कैसे प्रेम करते लव हैं? मीनिंग व्हाट, प्रेम क्या है? योर एनिमी, आपका दुश्मन, kind to them, उनको दया be दिखाए, patient to them, उन्हें धीरजवंत be रहे, humble to them, दीन रहे, be respect to them. उनकी इज्जत करे। Then you see your enemy will turn back to ताकि you. देखेंगे, अरे आपका दुश्मन आपकी ओर फिर रहा है, This woman अरे ये औरत, is so kind to ये me, व्यक्ति कितनी और कितनी so दीन है, humble to me, कितनी नम्र है, so respect, कितनी इज्जत कर रहे हैं, telling the truth. सच्चाई बोलती है। See, if the person you show to your enemy like this, अगर अपने दुश्मनों को वैसा ही दिखाएंगे, completely the person will change. वो व्यक्ति पूरी तरह बदल So जाएगा। love meaning is what? तो प्रेम क्या है? Patient, धीरज, kindness, दया, humble, नम्र, righteous, self-control, holiness. पवित्रताई। See all these things if you towards your enemy. अगर अपने दुश्मन की ओर ये सब करें, I'm sure even 1 hour your दुश्मन चेंज करेंगे, लेकिन हम लोग का क्या होता है, हम लोग का दुश्मन को पेशेंट नहीं होता, काइंडनेस नहीं देता, रेस्पेक्ट नहीं देता, दुश्मन इधर खड़ाता है तो हम काइंडनेस सो दो, रेस्पेक्ट दो, दूसरा गुजारेंगे, और हम आज तो ना देख के मेरा ना दिल तोड़ गया, आज तो मेरा दुश्मन को मिलके घर जाके आज का ना मेरा दिल खराब हो गया। But kind love means what? Love your enemy means what? दुश्मन That प्रेम करना your क्या है? enemy. कि आपका दुश्मन Bible say kind to that person, उसके यहाँ दयावंत हो जाए, patient to that person, धीरज दिखाए, humble to that person, नम्र हो जाए, respect to that person. इज्जत करे, That is love. वो प्रेम है। That language और वो भाषा you show to them, आप उन्हें दिखाएंगे, that person will change वो व्यक्ति बदल जाए automatically. और पूरी तरीके से। ओ मैं तो इतना गंदा था, इतना मेरा को इज्जत दे रहा है, मैं तो इतना गंदा था, मेरा को इतना kind दे रहा है, humble कर रहा है, completely that man or woman will change. वो व्यक्ति पूरी की तरह से बदल जाएगा। But we are better than him. लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है, Practically we are better than him. हमारे सच में बहुत मुश्किल होता है। Respect तो छोड़ो, बात तो छोड़ो, हम उससे भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। उससे भी हम और घर जाके रोते हैं, आज तो लोगों को मिल के मेरे को बुराई हो गया, आज तो लोगों का इंसान को मिल के मेरा दिल खराब हो गया, जाके घर में रोते हैं और घर पे रोते हैं और अपना रोते हैं। That is not love. तो ये प्रेम नहीं है। So let us change this year. तो इस साल बदल ले, Have the real love. सच्चा प्रेम रखें। So love means what? सच्चा प्रेम क्या है? Everyone say together. kind, patience, सब लोग। Love means patient, धीरज, kind, दया, humble, दीनता, self-control, नियंत्रण, respect, इज्जत, righteous, धार्मिकता, calm, शांति, honesty, ईमानदारी, holiness, पवित्रता, righteous, no selfish, और अपना ना no सोचना, greedy. कोई घमंड ना करना। That is love. ये है प्रेम। But if we didn't have this thing, लेकिन ये चीजें अगर नहीं है, let us ask God तो आइए हम प्रभु से to बोलें have this thing. कि ये चीजें हो। So if we didn't have this thing, अगर ये चीजें ना हो, there is no love. तो ये प्रेम नहीं। Then even though we are a Christian, तो हम चाहे मसीह तो बन जाए, because God is full of love. प्रभु में प्रेम है, So how God love us? तो प्रभु हमसे कैसे प्रेम करते हैं? How we know God love us? हमें कैसे पता प्रभु हमसे प्रेम करते हैं? He kind to us. वो अपने दयावंत होते He हैं, show His mercy. वो अपनी दया He दिखाते show हैं, His compassion. वो अपनी करुणा दिखाते He हैं, show His वो forgiveness. अपनी माफी देते He हैं, show His providing for वो हमारी us. जरूरतों को पूरा करते हैं। See, we saw the God action. हम प्रभु के कामों को देखते हैं, That is the same way God wants us to do. इसी तरीके से प्रभु भी चाहते हैं कि हम भी अपने कामों में प्रेम We all understand. आइए हम सब खड़े हो जाए। Let us pray. Then, if you have no patience,